Hello, good morning. Today we Today we study our second numerical of the velocity diagram. Okay. First numerical we already studied in a previous lecture. Now we study the second numerical. Numerical number 2. What is the numerical? In a 4 bar chain ABCD. In a 4 bar chain ABCD, AD is fixed. The numerical is given is that in a 4 bar chain ABCD, AD is fixed and is 150 long. Means AD is how much? AD is 150 long. So first of all, we write the given data. What we write? The given data. Given data. In the given data, what is mentioned? AD is 150 Okay, so 150 is AD. Long. The crank AB is 40 Next is crank AB. How much AB? AB is 40 means your crank AB. AB is a crank is 40 the mention in the numerical. Then long and rotates at 120 rpm means the crank AB, link AB can be rotated with. Means here speed of the AB is given. N means revolution. The speed of the AB is given is 120 rpm revolution per minute is given. That is clockwise. And how it given? The clockwise. This is our clockwise direction. Okay, that direction is the clockwise direction can be mentioned by this way. This is your clockwise direction. Then what again given in the numerical? While the link CD is 80 link CD is given. Link CD is 80 is given. Then oscillates about D. That link CD can oscillate about D. BC and AD are of equal length. So what is said? He said BC and AD are of equal length. Means BC and AD is nothing but the 150 Okay. Length. Find the angular velocity of link CD. Angular velocity denoted by omega. Omega of CD we want to find. Okay. When angle BAD is how much? 60 degree. Okay. That is the data is given in the numerical. So how we solve first? First of all, we can solve this by first of all we can draw the phase diagram by this data. मीन्स हम क्या करेंगे? पेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे इस डाटा से. तो कैसे पेज डायग्राम ड्रॉ होती है? तो आपको पता है कि जो भी डायमेंशंस हमको गिवन है उस डायमेंशंस को हम रिड्यूस करते हैं स्केल में, क्योंकि 150 इट नॉट टू बी पॉसिबल टू ड्रॉ इन दैट A4 शीट. सो फॉर दैट, सो व्हाट वी डू here, we select the scale. What is scale for page diagram? Here we select the scale for page diagram. Okay, what is the scale? Okay, we select AD is given, AB is given, okay, CD is given. We select 1 centimeter is nothing but okay, 20 1 centimeter is nothing but the 20 that the scale we select for page diagram. Means AD is equals to what? BC is how much? 150 divided by 20. Means this is the 7.5, right? 7.5 centimeter is that. Then next is what? AB is how much? AB is 40 40 divided by 20 means this is the 2 centimeter. Then next is given CD is 80 80 divided by 20, it is a 4 centimeter. Means we can calculate all the scale for the पेज डायग्राम. मतलब पेज डायग्राम के लिए हमने सभी स्केल को कैलकुलेट किया है. अभी हमको एंगल दिया है BAD 60 डिग्री, तो अभी हमको पेज डायग्राम बनना है विद द स्केल. अभी पेज डायग्राम में क्या बोला है न्यूमेरिकल में देखते हैं. एडी क्या है हमारा? इन 4 बार चेन. 4 बार चेन सबको पता है, इस तरह की कुछ 4 बार चेन होती है. दिस 4 बार चेन. अभी इसमें क्या क्या दिया है वो पहले देख लेते हैं. इसमें एक रफली डायग्राम बना लेते हैं, फिर उसकी पेज डायग्राम बनाते हैं. रफली डायग्राम कैसे? इन 4 बार चेन ABCD. AD इज फिक्स मीन्स ये जो फिक्स लिंक है, ये फिक्स लिंक का नाम क्या होगा? AD. तो नाम दे दिया हमने AD. देन जो कि 150 लॉन्ग है, तो AD कितना लॉन्ग है हमारा? 150 लॉन्ग है AD. उसके बाद क्या लगा? क्रैंक AB इज 40 एक AD है तो AB ये होगा. ये कितना है? तो ये 40 है,
40 mm crank AB is 40 mm wrong and rotated at 120 RPM। और ये कैसे घूम रहा है, 120 RPM से घूम रहा है, वो भी क्लॉकवाइज। तो हमने यहाँ पे 120 RPM दिखा है, ऐसा ये एरो दिखा है राउंड घूमने वाला, और यहाँ पे स्पीड देख देंगे 120 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये रफली डायग्राम बनाया हमने, ये डायग्राम, ठीक है। देन वाइल द लिंक CD इज 80 mm ऑसिलेट अबाउट D, ये D के अबाउट लिंक कौन सी ऑसिलेट हो रही है, CD। तो मतलब एक CD है जो कितनी है 80 mm है, और उसने बोला BC एंड AD, BC एंड AD इज 150 mm, मीन्स ये कितना है, ये भी 150 mm है। मतलब हमने एक रफ डायग्राम बना ली। ये डायग्राम को हमने अभी बाय यूटिलाइजिंग दिस स्केल फॉर पेज डायग्राम वी कैन ड्रॉ द पेज डायग्राम। ओके, तो हाउ वी ड्रॉ द पेज डायग्राम, यू कैन सी हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर लिंक AD इज फिक्स, तो वी कैन फिक्स द लिंक AD बाय पुटिंग द स्केल। हम यहाँ पे स्केल रख के हम लिंक AD को बना लेंगे, ठीक है। ये हमारे लिंक AD बन जाएंगे यहाँ से। सपोज दिस इज माई AD, 1 मिनट, दिस इज़ माई AD, ये मैंने AD बनाया, नाम दूंगा मैं उसको A, दैट इज़ D। 150 mm है, बट 150 mm बनाएंगे क्या, नहीं, क्या स्केल लेंगे 7.5 सेंटीमीटर। ये AD बना मेरा 7.5 सेंटीमीटर का, मतलब मेरा ब्रैकेट में लिख देना 150 mm बाय स्केल। तो इसके बाद हमको एंगल दिया था, एंगल इज गिवन द प्रॉब्लम, विच एंगल, एंगल BAD। अभी ये है AD, तो इधर कोई B है, ये है BAD, मतलब ये एंगल गिवन है कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर रखेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर से मार्क करेंगे, सपोज ये पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये यहाँ पे एंगल मिलेंगे अपने को 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री बनाएंगे। बट BAD, बट AB कितना है हमारा, AB इज़ 2 सेंटीमीटर। तो AB को हमने 2 सेंटीमीटर पे चॉप मारा इस एंगल पे, ये मेरा हो गया B। और एंगल कितना है 60 डिग्री। कैसे घूम रहा है, इट कैन बी रोटेट क्लॉकवाइज। स्पीड कितनी है, स्पीड है 120 RPM, तो ये बना के रखा। देन एंगल BAD हो गया। फिर उसके बाद क्या है BC एंड AD इज ऑफ 150 mm बोला उसने। तो हम क्या करेंगे, चॉप में लेंगे BC, B पे रखेंगे और एक 150 mm का चॉप मार के रखेंगे। क्या क्या हमने AD की इक्वल ही डिस्टेंस लिया है, मतलब 7.5 सेंटीमीटर लिया है क्योंकि 150 mm है, और हमने AD और BC 150 मतलब कितना 7.5 सेंटीमीटर होगा, तो हमने उतना डिस्टेंस लिया, B पे रखा, ये 150 का चॉप मारा, ठीक है। उसके बाद हमको CD दिया है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हमने चॉप में लिया, D पे रखा और इसको कट किया। जहाँ पे कट करेंगे दैट इज़ योर पॉइंट C, मतलब ये हो गया आपका BC जो बना था इक्वल टू AD, जो कि बना है 7.5 सेंटीमीटर, हमें ब्रैकेट में लिख देना 150 mm। B, ये जो हमारा AB था, AB कितना बना था 40 mm, तो ब्रैकेट में हमने लिख दिया 2 सेंटीमीटर। और हमारा CD हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा CD हमने ज्वाइन कर लिया। और ये कितना है, तो CD हमको दिया था 80 mm, इसको ब्रैकेट में डाल लेना, मतलब कितना 4 सेंटीमीटर हमने बनाया। So this is your space diagram. By utilizing this space diagram, we can draw the velocity diagram as per our numerical is concerned. They asked us angular velocity of CD, so we can find the angular velocity of CD. But before that, before solving this numerical, we know that in that 4-bar chain mechanism, AB can be rotated clockwise with the speed of 120 RPM. Means only one link having the know the magnitude as well as know the direction. Means we can calculate the velocity of the AB by utilizing this data 120 RPM. Okay, तो 120 RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट, 120 RPM से हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कौन सी वेलोसिटी निकलेंगी, लीनियर वेलोसिटी, या पहले एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे, देन वी फाइंड द लीनियर वेलोसिटी। तो फर्स्ट वी फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, तो यू कैन राइट हियर एंगुलर वेलोसिटी किसकी, AB लिंक की। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ AB लिंक को कैसे रीड किया जाता है, यू कैन रीड एट वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, सो वी कैन राइट एज दिस बाय लाइक दिस वे, BA, AB not write as AB, velocity of B with respect to A, so velocity of B with respect to A, that is angular velocity of AB. How it calculated by we given the speed, so formula is 2 pi n upon 60, that is the formula of angular velocity that we already that I already teach you in the previous lecture. So 2 pi n upon 60, you know that 2 pi, what is n, n is 120 upon 60. If you calculate this,
So we get the angular velocity of link AB means angular velocity of link B with respect to A. That is how much? That is 12.568 radian per second. 12.568 radian per second if we calculate this by your calci. Okay, so that is your angular velocity. How we calculate? We know that the speed of the link 120 rpm, the formula is 2 pi upon 60. In some cases what happened, we directly given the angular velocity, means कुछ प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमको डायरेक्टली एंगुलर वेलोसिटी दे देते हैं और हमको बोला जाता है लीनियर वेलोसिटी, हमको लीनियर वेलोसिटी निकालना पड़ता है. अभी हमको एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि हमको स्पीड दिया था, तो हमने स्पीड से क्या निकाला, एंगुलर वेलोसिटी निकाला, और एंगुलर वेलोसिटी से क्या निकालेंगे, लीनियर वेलोसिटी निकालेंगे क्योंकि हमको रिलेशन पता था. तो लीनियर वेलोसिटी कैसे निकलती है, लीनियर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय v, velocity of b with respect to a. What is the formula for linear velocity? Is nothing but the angular velocity of link in angular velocity of that link into length of that link. So what is the angular velocity of AB? Is omega of BA. It can be written as like this way, length of AB. We want to calculate the linear velocity of link AB. So what is the angular velocity of link AB? It is at 12.568 length of AB. But which length we select? We select 7 length of AB means 40 mm we select और 2 cm we select. तो जब भी लेंथ ऑफ AB हमको लेना है तो हमेशा जो एक्चुअल डायग्राम में गिवन है वो ही लेना पड़ता है. जैसे हमको 40 mm गिवन है तो हम 40 mm ही लेंगे, बट 40 mm को यहाँ पे mm में पुट करेंगे तो हमारा जो यूनिट होगा mm पर सेकेंड होगा. हमको mm पर सेकेंड में नहीं चाहिए, हमको मीटर में चाहिए. तो लेंथ ऑफ AB कितना है हमारा, लेंथ ऑफ AB इज़ 40 mm और बाय स्केल इज 2 सेंटीमीटर. पर दो नहीं सिलेक्ट करना है, ये तो हमने सिर्फ पेज डायग्राम के लिए है. एक्चुअल लेंथ यहाँ पे देखना है. ए बी कितना है हमारा 40 mm. 40 mm मतलब कितना, 40 mm इज नथिंग बट द 0.04 मीटर. मीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे. इन लेंथ ऑफ ए बी इज नथिंग बट 0.04. ओके, by solving this relation we know that angularity of AB, we know that the length of AB, which length is select, actual given length is that is given in 40 mm, we convert in a meter because we want the answer in a meter per second. So velocity, linear velocity of link AB is we can calculate by solving this relation. So we get 0.503 meter per second if you solve it. तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए बी. दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी. इन सम केसेस व्हाट हैपेंड, इफ द स्पीड इज नॉट गिवन डायरेक्टली angular velocity, if the direct angular velocity is given, then we can calculate by utilizing this angular velocity the linear velocity. But in that problem speed is given, so first we calculate angular velocity, then we calculate the linear velocity. Okay, this is the difference. Means if the angular velocity is given in the problem directly, we don't need to calculate the angular velocity. But if the angular velocity is not given in the problem, what happened, then the speed of that link is given. So by utilizing this speed we can calculate the angular velocity, and from the angular velocity we can calculate the linear velocity. Okay, so that is the relation. Now we know that the linear velocity, अभी हमको क्या पता है, linear velocity पता है. किसकी पता है, AB की. बाकी किसी का कुछ भी नहीं पता. मतलब हमको लिंक BC की स्पीड नहीं पता, उसका डायरेक्शन नहीं पता. CD का स्पीड नहीं पता, उसका डायरेक्शन नहीं पता. और AD तो फिक्स्ड है, AD इज़ फिक्स्ड. यू कैन शो लाइक दैट. फिक्स लिंक को आप इस तरह से दिखा भी सकते हो. ओके, सो अभी हमको इसका वेलोसिटी डायग्राम बनाना है. तो वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए, ये तो हमारा क्या था, दिस इज द पेज डायग्राम, दिस इज द फिगर ऑफ द पेज डायग्राम. ये क्या था हमारा पेज डायग्राम. ये पेज डायग्राम क्यों बनाना है, ये तो जनरल डायग्राम बनाया था हमने पेज डायग्राम, बिकॉज पेज डायग्राम से ही आगे का कैलकुलेशन होने वाला है. कैसे वो देखो. सबसे पहले क्या हुआ, लीनियर वेलोसिटी हमारी मिल गई, तो हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, वेलोसिटी डायग्राम बनाएंगे. तो हम लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर वेलोसिटी पॉलीगॉन. वेलोसिटी पॉलीगॉन के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे. वेलोसिटी पॉलीगॉन बोलो, वेलोसिटी पॉलीगॉन बोलो, वेलोसिटी डायग्राम बोलो, और वेलोसिटी डायग्राम. सो कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पे भी हमको वेलोसिटी डायग्राम के लिए भी स्केल देना पड़ेगा, क्योंकि 0.503 नॉट सो इजी, it is not easy to draw. 0.503 means it is a 0.5 centimeter. It is not easy to draw, so we can select the scale. So scale for velocity
diagram. Here we select the scale for velocity diagram. So how we select that scale? We know that the velocity of link AB is given, that is 0.503 meter per second. Okay, we consider 0.503 meter per second as a 5 सेंटीमीटर. हमने 0.503 को कितना कंसीडर किया? 5 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर मीन्स व्हाट? 1 सेंटीमीटर इज नथिंग बट द 0.503 divided by 5. Okay, if we calculate this we get some answer. Okay, 1 minute. Okay, so if we calculate this, so we get some answer. Means what is 0.503 divided by 5. Okay, 1 minute. 0.503 divided by 5. So our answer is 0.1006. Okay, means 1 centimeter is nothing but the 0.1006 meter per second. That's the scale we select for drawing the velocity diagram. Okay, what we do, first of all, the calculation for velocity diagram, scale for velocity diagram. हमने क्या किया, जो वेलोसिटी, जिसकी लिंक की वेलोसिटी हमको पता है, उस लिंक की हमको वेलोसिटी पता है, उसको हमने क्या लिया, जो भी है उसको 5 सेंटीमीटर कंसीडर किया. तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 0.503 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का मीनिंग होता है 0.1006 मीटर पर सेकेंड. अभी हमको एक्चुअल वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना है. कैसे ड्रॉ करना है अभी ये समझ लो. हम क्या करते हैं, हमेशा ये जो पेज डायग्राम के नीचे ही वेलोसिटी डायग्राम बनना चाहिए. अभी हमारा कैलकुलेशन बीच में आ गया, बट ठीक है, इसके लिए हमको रोलर स्केल की ज़रूरत पड़ेगी. मेरे पास सिंपल स्केल है, बट आपको रोलर स्केल की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, क्या करना है देखो, सबसे पहले जो भी फिक्स लिंक पॉइंट्स है उसको हम एक डॉट से ही डिनोट करेंगे, एक ही पॉइंट पे डिनोट करेंगे. अभी हमारे पास फिक्स कौन है? ए फिक्स है, हमारा डी फिक्स्ड है. सो इट कैन बी इंडिकेटेड बाय द सिंगल डॉट and we use the here later the small letters, means this is the A and this is the D. Okay, this is your A, this is your D. It can be indicated by the single letter, single point. जो भी हमारा फिक्स्ड है उसको हम सिंगल पॉइंट से इंडिकेट करेंगे. अभी बात करेंगे ए बी की. ए बी की हमको स्पीड पता है, मतलब इसका डायरेक्शन भी और क्लॉकवाइज घूम रहा डायरेक्शन भी पता है, तो हमने उससे उसकी वेलोसिटी निकाली थी. और उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 503 मीटर पर सेकेंड. और 503 मतलब कितना है? 5 सेंटीमीटर. और कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब नीचे के साइड में बनेगा. देखो, क्लॉकवाइज घूम रहा है मतलब नीचे के साइड में, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है तो ऊपर के साइड में. और हमेशा वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लिंक. अभी परपेंडिकुलर मीन्स क्या? मतलब परपेंडिकुलर मतलब इस तरह से. ये मेरी स्केल है, ये कैसी है? इसको मैंने, ये लिंक जो ए बी है इसको मैंने क्या करा? परपेंडिकुलर. कैसे समझा मैंने? ये मेरे स्केल की जो मार्किंग है मैंने ये लिंक के साथ मैच करी, ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन. तो ये क्या हो गया? इसको परपेंडिकुलर टू द स्केल है. अभी इसलिए हमने रोलर बोला था क्योंकि इसको हमको यहाँ से या इसके ऊपर से इसको नीचे में प्लॉट करना पड़ता है. तो इससे हम रोल करेंगे, इसको रोल करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे हम आ गए. अभी यह हमने क्या किया, यहाँ से उठाया इसको. देखो यहाँ पे रोलर स्केल रखा, बराबर मैच किया, परपेंडिकुलर रखा. दिस इज द परपेंडिकुलर. ये जो मार्किंग है, सो ये जो मार्किंग है स्केल की, दैट मार्किंग दैट मैच विद दैट लाइन, सो इट्स योर परपेंडिकुलर. ओके, और इसको हमने रोल करके हम कहाँ पे लाएंगे? हमारे फिक्स पॉइंट पे लाएंगे. कितना बनाना है हमको? 5 सेंटीमीटर, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ ए बी इज गिवन इज 0.503 मीटर पर सेकेंड. और उसको हमने स्केल के लिए क्या सेलेक्ट किया? 5 सेंटीमीटर. हमने 5 सेंटीमीटर बनाएंगे. कहाँ पे? नीचे में, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. लिंक कैसी घूम रही है? क्लॉकवाइज बोलते नीचे, एंटी क्लॉकवाइज बोलते ऊपर. तो नीचे में हमने ये 5 सेंटीमीटर बनाया. ये कितना बनाया मैंने? 5 सेंटीमीटर. स्केल हटा दो, इसको नाम दे देंगे हम लोग बी.
दिस इज द 5 सेंटीमीटर, और स्मॉल लेटर ही यूज़ करना है 5 सेंटीमीटर, और इसको डायरेक्शन दे देना। ये था हमारा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, छोटी एज से इंडिकेट होगा। स्मॉल लेटर हम वेलोसिटी डायग्राम के लिए यूटिलाइज करते हैं, और एक्सेलरेशन डायग्राम के लिए डॉट यूज़ करते हैं। डॉट मीन्स ए डॉट बी डॉट सी डॉट, इस तरह से। तो ये हो गया ए बी। अभी इसकी तो इसकी हमको स्पीड पता थी, इसका डायरेक्शन पता था, बट ना बी सी का स्पीड पता है, ना इसका डायरेक्शन पता है, ना सी डी का स्पीड पता है, ना इसका डायरेक्शन पता है। और ए डी तो फिक्स्ड है, जिसको हमने एक पॉइंट पे इंडिकेट किया। तो अभी हमको पहले तो बी सी और सी डी ड्रॉ करना है। कैसे, देखो अभी बी सी जो लिंक है, ये जो बी सी लिंक है, बी सी लिंक में कौन सा पॉइंट पता है हमको? बी पॉइंट पता है, राइट। अब और बी पॉइंट कहाँ पे पता है? हमारे वेलोसिटी डायग्राम पे। तो ये हमारा बी पॉइंट है, बट सी पॉइंट कहाँ बनेगा? ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा, इधर साइड बनेगा, इधर साइड बनेगा, कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, और हमने बोला है कि वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लिंक। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी स्केल है, इसको बी सी पे क्या रखेंगे? परपेंडिकुलर। अभी परपेंडिकुलर कैसे रखते हैं मैंने बताया था। ये हमारी स्केल की मार्किंग इसके साथ मैच करेंगे। देखो हमने क्या किया, ये हमारी स्केल है, सपोज दिस इज आवर स्केल। तो हमने अपनी स्केल की मार्किंग इसके साथ मैच की होगी मैच, ओके। देखो ये हो गया एक्चुअल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। अभी हमने इसको मार्क किया, तो आप देख सकते हो ये स्केल को, ये मेरी लॉन्ग स्केल है, तो आपको वो पॉइंट इधर तो मैच हो गया है, साथ में ये इधर भी आ गया हमारे। तो इसको हमने इधर से प्लॉट करेंगे। आप इसको रोलर स्केल से रोल करके अपने पॉइंट पे ला लो, देख लो, तो इधर मैच भी हो जाएगा। ये देखो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर मैच हुआ है अपने यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लाया बी पे, क्योंकि बी पॉइंट पता है मेरे को, सी नहीं पता ऊपर बनने वाला है नीचे बनने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लाइन बना के छोड़ दूँगा ऊपर नीचे। ये मैंने लाइन बना के छोड़ दी ऊपर नीचे। एक ए जो है ना बी, कैसे किया देखो फिर से एक बार। ए बी पे मैंने क्या करा, ये मेरी ए बी लिंक है, ए बी पे मैंने एग्जैक्ट परपेंडिकुलर मैच किया। देखो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर मैच किया, आ गया एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। इसको रोल किया मैंने, देखो इसको रोल किया कहाँ पे रोल किया? बी पे रोल किया, इसलिए रोलर स्केल की ज़रूरत है। बी पे रोल करने के बाद ये देखो बी पे रोल होगी रोलर स्केल से, और मैंने एक ऊपर नीचे लाइन बना के छोड़ दी, क्योंकि मेरे को बी सी का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड नहीं पता, ऊपर बनने वाला नीचे बनने वाला कुछ नहीं पता, तो मैंने बना के छोड़ दी, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लिंक। नेक्स्ट लिंक कौन सी है हमारी? सी डी। सी डी लिंक में से हमारे पास वेलोसिटी डायग्राम को कौन सा पॉइंट पता है? डी, मतलब डी से पास होने वाला। जैसे हमको ए बी में से बी सी में से बी पता था, तो बी से हमने पास कराया लिंक लाइन को। वैसे सी डी में से कौन सा है हमको पॉइंट पता है? डी पता है, तो सी डी को परपेंडिकुलर। अभी मैंने बताया कि परपेंडिकुलर कैसा लिया जाता है, इसलिए हमको किसकी ज़रूरत रहती है? रोलर स्केल की। हम क्या करेंगे, अपने मार्किंग के साथ इसकी मार्किंग को मैच करेंगे। देखो इसके मार्किंग को मैच किया, ये होता है एग्जैक्ट परपेंडिकुलर। इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे रोल। कहाँ पे रोल करेंगे? डी तक, क्योंकि सी डी लिंक का डी पॉइंट हमको पता है। तो हमने इसको रोल किया, ये आ गए डी पे, आ गए डी पे, हाँ आ गए डी पे। अभी इस पर हम लोग क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी जहाँ पे ये पॉइंट इंटरसेक्ट होगा। बिकॉज देखो हमको ए पता है, डी पता है, हमको वेलोसिटी डायग्राम में क्या क्या पता है? ए डी तो एक ही पॉइंट पे था, बी पता है, तो ये पॉइंट कौन सा होगा? ऑब्वियस है ये सी होगा। मतलब ये हो गया बी सी, ये हो गया ए बी, और ये हो गया सी डी। क्योंकि ए और डी तो फिक्स है, तो वो एक ही पॉइंट पे आएंगे ना, इसीलिए। तो आप इसको शो कर सकते हैं इस तरह से, दिस द वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, और दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, ओके। ये हो गया हमारा वेलोसिटी डायग्राम, दिस इज योर वेलोसिटी डायग्राम। ये हैशिंग लाइन से भी आप बता सकते हो कि ये जो आप पॉलीगॉन बना, दिस इज योर वेलोसिटी डायग्राम। ये क्या है? तो आपकी वेलोसिटी डायग्राम है, ठीक है। वेलोसिटी डायग्राम बन गया। अभी हमारा कैलकुलेशन पार्ट है। कैलकुलेशन क्या करना है हमको, क्या निकालना है? हमको बोला था फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक सी डी, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। अभी हमने देखो एंगुलर जैसे ए बी की कैसे निकली 2πn/60, क्योंकि इसकी स्पीड पता थी, बट सी डी की कुछ स्पीड दिया है कि हमको नहीं। बट एंगुलर वेलोसिटी हमको निकालना है, तो कैसे निकलती है? एक रिलेशन है हमारे पास, लीनियर वेलोसिटी इज नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी इनटू द लेंथ ऑफ द लिंक। तो ये रिलेशन हम ले सकते हैं, मतलब इसके लिए यहाँ से यहाँ ये रिलेशन से हम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बट इसके लिए हमको क्या पता रहना चाहिए? लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी हम अभी निकालेंगे। अभी लीनियर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? तो देखो लीनियर वेलोसिटी फ्रॉम डायग्राम, वी नो दैट, क्योंकि हमने ये जो डायग्राम वेलोसिटी डायग्राम है, तो यहाँ से हमने जो भी ड्रॉ किया है वो वेलोसिटी डायग्राम के वेलोसिटी को कंसीडर करके ड्रॉ किया है। तो हम क्या करेंगे, हमको चाहिए एंगुलर वेलोसिटी, वी रिक्वायर द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी डी। So for that first we calculate the linear velocity of CD. How we calculate linear velocity CD? Linear velocity is so simple. Length of CD
इसमें हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ सी डी, छोटा सी डी, क्योंकि हम वेलोसिटी डायग्राम से डिस्टेंस लेने वाले हैं। लेंथ ऑफ सी डी इंटू क्या कर देंगे, स्केल। अभी लेंथ ऑफ सी डी क्या है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सी डी को गिनेंगे। यहाँ से हम सी डी को गिनेंगे। ये देखो सी डी, ये मैंने सी डी को गिना तो मेरा 2.5 आ रहा है। आपका अलग आएगा क्योंकि आपका एक्यूरेट है, मेरा रफली है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं 2.5 कंसिडर करके चलता हूँ। ठीक है, अगर मेरे 2.5 आता है तो ये मतलब सी डी जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया, सपोज मेरे 2.5 आया, 2.5 आया तो मैं क्या करूँगा, ये 2.5 को यहाँ पे लिख दूंगा। लेंथ ऑफ सी डी इज माई 2.5 सेंटीमीटर था, तो हमको सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मतलब कितना, तो हमने स्केल लिया है 1 सेंटीमीटर मतलब 0.106, तो 2.5 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर पर सेकेंड, तो 2.5 सेंटीमीटर टू द स्केल। स्केल कौन सी, 1 सेंटीमीटर वाली, 0.1006। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ सी डी। इसको सॉल्व कर लेना, आपका ये अलग आ सकता है लेंथ ऑफ सी डी। ठीक है, ये डिपेंड्स ऑन योर स्केल, क्योंकि मेरा जो है मेरा रफली है। तो क्या कहूँगा मैं, 2.5 इंटू स्केल, स्केल क्या है 0.1006। इसको सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आता है, मेरा जैसा आंसर आता है 0.2515। तो मेरा आंसर आया 0.2515 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई मेरी लीनियर वेलोसिटी ऑफ सी डी। बट मुझे लीनियर वेलोसिटी पूछा है क्या, नहीं, मुझे क्या पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी। बट लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है, ये यहाँ पे रिलेशन है। लीनियर वेलोसिटी इज नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी इनटू लेंथ ऑफ दैट लिंक। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे। लीनियर वेलोसिटी इज नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी इनटू लेंथ ऑफ दैट लिंक। बट लिंक कौन सी, लेंथ ऑफ दैट लिंक, बट लेंथ कौन सी लेना पड़ता है, एक्चुअल लेंथ। क्योंकि देखो यहाँ पे AB लिखा था, इसलिए एक्चुअल लेंथ AB की एक्चुअल लेंथ कितनी थी, 40 mm थी। AB की एक्चुअल लेंथ 40 mm। वैसे हमने यहाँ पे बड़ा CD लिखा, और बड़ा CD की एक्चुअल लेंथ कितनी है, CD की एक्चुअल लेंथ कितनी है, 80 mm। मतलब एंगुलर वेलोसिटी हमको निकालना है, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, एंगुलर इज नथिंग बट द लीनियर वेलोसिटी अपॉन लेंथ ऑफ CD। अभी लीनियर वेलोसिटी कितनी है हमारी, 0.2515, और लेंथ ऑफ सी डी कितना है हमारे पास, 80 mm। बट हमको उसको किस में, अभी 80 mm में हमको वेलोसिटी किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में या फिर रेडियन में। ये जैसे ये हमारा मीटर पर सेकंड में था, तो अभी हमको रेडियन में लगेंगे ना। तो रेडियन में लगने के लिए भी हमने अगर ये वेलोसिटी को सी डी जो हमने निकाला, मतलब वेलोसिटी ऑफ सी डी निकाला, लेंथ ऑफ सी डी निकाला, तो ये जो वेलोसिटी ऑफ सी डी जो किस में निकला था, मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ सी डी भी हमारी, ये देखो वेलोसिटी ऑफ जो सी डी है हमारी वो मीटर पर सेकंड में, तो लेंथ ऑफ सी डी भी हमको मीटर में ही पुट करना पड़ेगा। 80 mm मतलब कितना, 80 mm को कन्वर्शन, 80 mm इज नथिंग बट 0.08 मीटर। हम यहाँ पे अपने गिवन डाटा में भी लिख देते हैं, 80 mm है हमारा, 80 mm सी डी है, तो 80 mm मतलब कितना, 0.08 मीटर। ठीक है, तो 80 mm मतलब 0.08 मीटर। तो हमने क्या किया, ये देखो एंगुलरिटी लीनियर वेलोसिटी अपन लेंथ ऑफ सी डी, लीनियरिटी लिखा, लेंथ ऑफ सी डी को मैंने 80 mm से मीटर में कन्वर्ट किया। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो ये आंसर आता है आपका, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सी डी इज नथिंग बट द 3.14। एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज इन अ रेडियन पर सेकेंड। तो दैट इज योर आंसर, ओके। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, जो बहुत इजी है न्यूमेरिकल। अभी आपको इसमें समझ में आया होगा। ठीक है, तो एज पर स्केल हमने ये सब लोग कैलकुलेट किया। ठीक है, अभी आपका क्या हो सकता है कि आपका ये जो डिस्टेंस है ना, वेलोसिटी ऑफ सी डी, ये चेंज हो सकता है, क्योंकि मैं ये रफली किया। सो होप सो कि आपको ये न्यूमेरिकल अंडरस्टैंड होगा, आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करो इसको और कमेंट करो, और कोई डाउट है तो मुझे पूछो। ओके, थैंक यू।